Yes, sir. Oh, okay, good. So, so what we are going to see today is, so we'll start with the basics of Excel. As in Excel is used for calculation. बेसिक फंडामेंटल जब आपने अभी तक यूज किया है एक्सेल मोस्टली कैलकुलेशन के लिए वगैरह यूज किया है राइट सो व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट विद द एक्सेल कैलकुलेशन and we'll gradually move towards what is analytics, how will you do any analytics, or you want to use any additional features and all, so that we can do it. By the way, internet is not required to use Excel, so FYI. Okay. So yesterday जैसे हमने देखा था, so at the top what we have are the tabs, right? अलग अलग tabs है ऊपर, and then we have the data here. These are column names, and cell. This is a single unit is called a cell, right? In the cell, what is the address? This is a B5, which is nothing but address, where B is a column and 5 is a row, right? So, and this is cell address, and any formula which we are going to write is nothing but a combination of, or location wise we can use that formula. So there are very few formulas, as in like what you will use directly as a formula. मतलब आप लोग ऐसा नहीं कि सब फॉर्मूला याद रखोगे एंड वो फॉर्मूला हर बार यूज करोगे. हम वो अप्रोच नहीं फॉलो करने वाले. अवेलेबल टूल्स है ऊपर टैब्स में, that we are going to see. But before going to the more what we say directly using the advanced option, what we can say is, let's start understanding what is formula, how to write it, what are the basic formulas, so on and so forth. So first and foremost is, whenever you get the data, any data, first thing is you should understand what does that mean. Okay. So any as a data analyst, यहाँ से आगे सिर्फ आपको every time you will get some data set or data which you need to process, उस पे कुछ analysis करना है, cleaning करना है, whatever the process you are going to follow, the first and foremost step as a data analyst is data understanding. Okay. Not only this, but any data, यहाँ से आगे कभी भी आपको while doing your assignment, while doing any project, the first and foremost step becomes a data understanding. So what all the data understanding means? Understand the columns and the rows. So maybe just for an example, we can start with just understanding some salary related data. Okay, not salary, but the product. There is a one superstore, as in there is one kirana shop or any store, and in that store, which products we have a data related to that shop. Means मतलब हमारे पास एक सुपर स्टोर का डेटा है. कुछ स्टोर एज इन सुपर स्टोर मतलब डी मार्ट, मेगा मार्ट, जो भी है ना, सब कुछ वहां पे मिलता है. तो रिलायंस स्मार्ट वगैरह, तो उससे रिलेटेड एक डेटा सेट है हमारे पास. तो और नहीं तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो ई कॉमर्स वाले हैं, तो उससे रिलेटेड ये डेटा है. So let's start understanding one by one क्या दिया है डेटा में and how we can use other details. So first and foremost is the order date, means जिस दिन order receive हुआ है, that is the order date, right? And then next column is country. Country means कौन से country से order आया है, और the customer where you need to ship the order, वो आप बोल सकते हो कि country. Then the region. So region is some central Oceania, Western Europe, Central USA. Nothing but a group of countries. मतलब हर एक दो तीन कंट्री को मिला के एक रीजन कहने से क्रिएट हुआ है. ये देखिए, जर्मनी एंड सेनेगल इज इन, सॉरी, वेस्टर्न यूरोप. ओके, okay, is it visible now? Oh. So depending, like
if you combine 2 to 3 countries, this is just an example, there's a large data set. So what you can say is combination of 2 countries can be a region, and combination of a region can be a market. As in, let's take some example. Yeah, this is Southern Asia and Western Asia is combined into Asia Pacific. So if I want to give you an example, so what what is this? This is nothing but a, in India we have a states, right? Different states are there, and combining different states we have a country, and combining different country we have a continent or a region. Or you can take example district, म्हणजे district, there are district in each state. So district का combination करके state बनता है, state का combination करके country. So Sir, your voice is not audible, sir. okay, just mm, still it is not clear, because can anyone else confirm whether it's clear or not? What about others? So now it is. No, sir. Yes, sir. Now it is clear. Okay. Okay. So first, what we are doing is data understanding. Those who have joined late, so just to give them a reference, the first step of any analysis start with the data understanding part, where you understand each and every column. What does that column means and what is the significance? मतलब हर एक column आपको you need to understand, और उसके basis पे you need to create, हम जब आगे जाने वाले analysis, so that time you should be able to understand हर एक column का significance. So that we'll see, not an issue, but first step आज सीखेंगे which is data understanding part. Okay, so then the next one is the product ID, right? And then category, कौन सा category का है, sub categories phones, and the actual product. Maybe just an example, you can see the product का description क्या है यहाँ पे, product name is Nokia phones, right? And Nokia phones कौन सा category में आता है, phone के. So there might be a different categories, phones, chairs, copier मतलब copy machine, xerox वगैरह, tables, bookcases. So different category of product है उनके पास, सब category, और ये category combine करके you can see as in you can combine, see, copier and phones, these are all technology products, right? Technology one, but just an, okay, so this is nothing but a technology product. So likewise again differentiate, जैसे हमने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल लिया था, डिस्ट्रिक्ट कंबाइन करके स्टेट, स्टेट कंबाइन करके कंट्री, तो सिमिलरली प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का एक सब कैटेगरी एंड देन कैटेगरी, राइट? सो दिस इज व्हाट द डेटा मींस. ये क्यों किया गया है, क्या किया गया है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बट टाइम बीइंग वी नो व्हाट इज देयर इन द डेटा. फर्स्ट स्टेप आप पहले जान लीजिए कि क्या लिखा है इसमें, एग्जैक्टली है क्या डेटा में, एंड देन विल अंडरस्टैंड व्हाई पार्ट, मतलब इसमें कौन सा कॉलम क्यों दिया गया है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. सो सेल्स इज द सेल, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है, देन द क्वांटिटी, लाइक फोन कितने हैं, हाउ मच ऑर्डर वाज, 5 ऑर्डर का फोन था, सैमसंग फोन विथ कॉलर आईडी, इसका 5, there's a 5 quantity, right? डिस्काउंट दिया गया है 0.1. so I need to tell you what is this 0.1, मतलब कुछ नंबर दिया गया है 0.1. so do you think this is valid, invalid, possible? अभी आपको पता नहीं है, बट है इसमें कुछ तो नंबर, राइट? we'll come back to that, what is this, why this number is like this. then the profit, मतलब मान लीजिए 2000 का आपने सैमसंग का फोन बेचा है, उसके पास प्रॉफिट कितना हुआ, 700 का, राइट? देन शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट मतलब कुरियर भेजना, लॉजिस्टिक्स, पैकिंग, पिकिंग, पैकिंग, वो सब कुछ. एंड देन ऑर्डर प्रायोरिटी. सो ऑर्डर प्रायोरिटी मतलब मान लीजिए इफ यू आर अमेजॉन प्राइम कस्टमर, तो आपको एक दिन में डिलीवरी मिलता है, राइट? सो उस टाइम पे ऑर्डर प्रायोरिटी फिर क्रिटिकल हो जाता है, एज इन आज ऑर्डर आया तो आज ही भेजना है, देन ऑर्डर इज क्रिटिकल.
मान लीजिए आपने अमेजन प्राइम नहीं है, फिर आपका लो प्रायोरिटी पे ऑर्डर प्रोसेस होगा, 2 दिन के बाद वो सेंड करेंगे, फिर 4 दिन के बाद मिलेगा। सो दैट आइडेंटिफिकेशन का ही तो होना चाहिए ना, कौन से टाइप का ऑर्डर है, कितना प्रायोरिटी पे भेजना है। सो दिस डिटेल इज देयर। सो once we understood कि कौन सा कॉलम डेटा में है, then important is why this data is there, मतलब ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि somebody has maintained this data, right? मतलब किसी CRM सॉफ्टवेयर वगैरह रहते हैं, नहीं तो सेल्स ERP आपको पता है क्या, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और देयर आर सॉफ्टवेयर कॉल्ड SAP। तो ये क्या करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हम मेंटेन करते हैं कुछ रिकॉर्ड्स मैन्युअली, जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, गवर्नमेंट में कैसे पेन एंड पेपर में सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन होता है, वैसे कंपनी में सारा डिजिटली रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, तो वन ऑफ सच सॉफ्टवेयर कॉल्ड SAP, SAP में भी बोलते हैं बट SAP। तो ये सारे कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटा वो सिस्टम में रहता है। तो वैसे ओरेकल का सॉफ्टवेयर है, आप जो भी कंपनी में जाओगे, हर एक कंपनी का अलग अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं, HR एक्टिविटी जो भी है, तो वो सॉफ्टवेयर का डेटा आपको दिया जाता है मोस्टली एनालिसिस करने के लिए। ओके, तो वो सॉफ्टवेयर में ये डेटा मेंटेन किया गया है, ऐसे डेटा आपको दिया है, देन योर जॉब एज अ एनालिस्ट इज टू गिव सम वैल्यूएबल इनपुट, इनसाइट्स और एक्शंस। क्योंकि जस्ट टू गिव, अभी तक हमने मैन्युअली 20 बट एक्चुअली इसी का यू हैव अ प्रोजेक्ट फोल्डर किसी ने डाउनलोड किया है, तो इसका 1 लाख रिकॉर्ड्स का एंट्री है यहाँ पे। Okay, hi Ruchikesh. Those who have joined late, we have started the first step of data analysis, which is called data understanding. तर क्विकली सांगायचं झालं तर कॉलम वेअर म्हणजे प्रत्येक कॉलम मध्ये काय इन्फॉर्मेशन आहे हे बघत आहे आपण, दॅट्स द वन पार्ट. ओके, आणि उद्यापासून मे बी इफ यू जॉईन ॲट 6:15 इट्स बेटर. उद्यापासून आपला क्लास 6:15 ला असेल. ओके, सगळ्यांना, फॉर एव्हरीवन दिस इज द सेम instruction. 6:15 is our timing, so try to be on time. Yes, no, Yes, sir. clear? Yes, sir. Okay, those who Yes. are joined late today, can't, we don't get a pop-up here. Okay, so first step as an analyst, so what do you think, like as in data understanding हमने किया, then the next maybe what we say, we'll discuss why this column exists, and then we'll understand कि as a data analyst आपको क्या काम रहता है. Okay, so you understood कितने कॉलम्स है डेटा में, डेटा क्लियर है सबको, मतलब ये डेटा आपको दिया गया है, अज्यूम आपने, यू आर वर्किंग इन सम डेटा एज एनालिटिक्स और डेटा एनालिस्ट इन द कंपनी, और आपका कोई वेंडर है डीमार्ट वगैरह, डीमार्ट है, रिलायंस फ्रेश, और ये सेम डेटा आपको दिखेगा, सिर्फ कंट्री रीजन नहीं रहेंगे बट बाकी का तो सेम ही रहेगा, डिस्काउंट कितना मिला, प्रॉफिट कितना है, कुरियर शिपमेंट कितना है, ऑर्डर प्रायोरिटी, और इसके आगे और कुछ डेटा रहेगा. तो सो व्हाट डू यू थिंक, आप अभी यहाँ बैठ के एज अ डेटा एनालिस्ट यू आर वर्किंग, सो व्हाट डू यू थिंक योर जॉब रोल इज, मतलब क्या काम रहेगा आपको एज अ डेटा एनालिस्ट? यस, कैटेगरी वाइज एनालिसिस. Okay, okay, that's almost there. What about others? नहीं, आपका डे टू डे एक्टिविटी क्या रहता है एज ए एनालिस्ट? मे बी इफ आई आस्क यू, आपको ये डेटा दिया गया है, इसका पर्पस क्या है, आपको क्या काम करना है, आपने जॉब लिया डेटा एनालिस्ट, आपको ये काम दिया, मतलब एज अ डेटा सेट आपको ये भेज दिया किसी ने, क्लाइंट ने, तो आगे क्या करोगे, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑनलाइन, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू? As a client requirement, data cleaning and data manipulation. ओके, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये है कि ये मेरा डेटा है, मुझे इससे कुछ डिसीजन लेना है, मेरा बिजनेस बढ़ाना है, और ये डेटा लो, मेरा बिजनेस बढ़ा के दो. दिस इज अ क्लाइंट रिक्वायरमेंट.
सर ट्रेंड्स एनालाइज करेंगे, मतलब सेल किस चीज का सेल्स ज्यादा हो रहा है ओके, और किस में प्रॉब्लम्स आ रही है वो एनालाइज करेंगे. got it. Trend analysis, category analysis. Okay, okay. So you people are right there, as in almost, मतलब you know what is that. But understand कीजिए कि आपको कोई client ऐसे आके नहीं बताएगा कि ये मुझे trend analysis करके दो, मेरा ये category analysis करके दो, right? Client requirement is very simple. Client wants to take a data driven decisions. Data driven decisions means उसको एक बिजनेस एक्सपांड करना है और कंपनी को प्रॉफिटेबल करना है, राइट? उसको एज अ क्लाइंट, और कोई भी कंपनी हो, रिलायंस, जियो और डीमार्ट, उनका अल्टीमेट गोल क्या है? बिजनेस एक्सपांड करना, प्रॉफिट जनरेट करना, राइट? और ये प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा और बिजनेस कैसे एक्सपांड होगा? तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जो उनके पास डेटा है उस डेटा को एनालाइज करते हैं एंड देन टेक अ डिसीजन. मान लीजिए मैं डीमार्ट का ओनर हूँ, ओके, अज्यूम. सो आई सी द, मतलब मुझे एक बहुत सारे दिवाली आ रहा है तो दिवाली के लिए ऑफर देना है. तो एज अ बिजनेस ओनर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट में ऑफर देने से मेरा प्रॉफिट ज्यादा है और कौन से प्रोडक्ट पे ऑफर देने से मेरा लॉस हो जाएगा? तो somebody has to tell ना, as a owner, मतलब as a company. ये just an example. Apart from this, मैं कुछ गाड़ी बेच रहा हूँ, कार बेच रहा हूँ, आई एम लॉन्चिंग अ न्यू व्हीकल. मान लीजिए मैं BMW X3 X4 जो भी है वो लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसका प्राइस कितना रखना चाहिए? और मान लीजिए मैं अब टेस्ला का भी आ रहा है इंडिया में, राइट? होप यू आर अवेयर कि टेस्ला इंडिया में आ रहा है. सो अभी एज अ टेस्ला, अभी मान लीजिए आप इलॉन मस्क है, तो कहाँ पे आपका शोरूम ओपन करोगे आप इन इंडिया? ओके, तो ये रैंडम गेस करोगे क्या? चलो यार मुंबई में ज्यादा लोग हैं, मुंबई में ओपन करता हूँ, एक दिल्ली में ओपन करता हूँ, बेंगलोर में ज्यादा पैसा करता हूँ. सो somebody has to prove ना, मतलब प्रूव करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई एज अ, मतलब कंपनीज हायर अ डेटा एनालिस्ट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्लाइंट रिक्वायरमेंट, नथिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड क्लाइंट रिक्वायरमेंट. क्लाइंट का रिक्वायरमेंट यही है कि ही नीड्स, ही, मतलब उसका मोटिव समझिए, उसको डिसीजन लेना है और वो डिसीजन को इनेबल करने के लिए और डिसीजन को प्रूव करने के लिए आपको सपोर्ट करना है. मान लीजिए एज अ इलॉन मस्क आई वांट टू, मैं इंडिया में आ रहा हूँ एंड आई वांट टू 10 शोरूम खोलना है इंडिया में. तो एज अ डेटा एनालिस्ट आप प्रूव करोगे कि ये कौन से 10 लोकेशन होंगे जिसपे वो शोरूम, लाइक इफ यू ओपन द शोरूम इट्स अ प्रॉफिटेबल. मतलब आपको प्रूव करके दिखाना है इन नंबर्स और इन अ थियरी कि यहाँ पे आप स्टोर्स खोलिए आपको प्रॉफिट होगा, राइट? सो दिस इज द एक्चुअल जॉब ऑफ डेटा एनालिस्ट. तो ये अकॉर्डिंगली आपको जिस डोमेन में काम करते हैं उस डोमेन पे अप्लाई कीजिए. इफ यू आर वर्किंग इन हेल्थ केयर, तो पेशेंट का मूवमेंट चेक करना है हॉस्पिटल में, तो वो भी, उसके लिए भी डेटा एनालिस्ट लगते हैं. और कौन से टाइम पे ज्यादा ओपीडी पेशेंट रहते हैं, कौन से सीजन में कौन सा वायरस आ रहा है, कौन सा इशू आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मेडिकल में दीज पीपल कैन स्टोर द ड्रग्स, राइट? मतलब बारिश के टाइम पे कुछ अलग डिसीजेस रहते हैं, उससे रिलेटेड वो मटेरियल स्टॉक करके रख सकते हैं. यू कैन टेक एनी एग्जांपल, होटल्स में, राइट? शादी का सीजन रहता है नवंबर दिसंबर एंड मई. सो ड्यूरिंग दिस टाइम यू कैन एनालाइज कि कितने लोग आ रहे हैं इस साल, व्हाट इज द पॉपुलेशन इंडिया का पॉपुलेशन कैसे ग्रो हो रहा है, एज क्या है उनका, तो कितने लोग आएंगे इस बार शादी करने के लिए. ऑल दोस यू कैन प्रिडिक्ट एंड इससे आपको ये फायदा कर सकते हैं कि कौन सा ऑफर लॉन्च करना है, क्या करना है, कौन सा गोल्ड पे कब ऑफर रिलीज करना है. सो दिस इज द एंड रिजल्ट. तो आपको आउटपुट क्या अचीव करना है कि आपको आपके क्लाइंट को बताना है कि दिस इज कॉल्ड एन एक्शंस. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मतलब एज अ आउटपुट जो भी आप एनालिसिस करोगे उस आउटपुट रहेगा एक्शन स्टेप्स. ओके, मतलब डेटा सेट दिया गया है, मेरे क्लाइंट को बताना है कि सर आप एक काम कीजिए, सैमसंग के प्रोडक्ट आप सेल ज्यादा करिए, उस पर ऑफर ज्यादा दीजिए. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको है. दिस इज अ एक्शन. सो दैट एज अ क्लाइंट वो जाके
सैमसंग रिलेटेड सारे प्रोडक्ट उनके ऑफर वगैरह रन करेगा। क्लियर? अंडरस्टैंड बेसिक क्या है, क्यों काम कर रहे हो, व्हाट इज एग्जैक्टली एज अ डेटा एनालिस्ट यू विल डू। क्लियर सबको? सो एनी रिपोर्ट Yes, yes, sir. एंड ऑफ दिस कोर्स आपको रिपोर्ट एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट का आउटकम क्या रहेगा, एक्शन स्टेप्स, राइट? इसको बोलेंगे एक्शन। एज अ क्लाइंट और आप जो भी डेटा एनालाइज कर रहे हो, मान लीजिए किसी को एक्सप्लेन करना है उस डेटा को क्या है, तो आपको एक्शंस देना है। इससे एक्शन क्या है, एक्शन मतलब मान लीजिए एचआर का डेटा है और आपको दिख रहा है कंपनी लॉस मेकिंग है, तो आपका एक्शन रहेगा कि टॉप 10 परफॉर्मर को फायर कर दो। दिस इज एक्शन, राइट? क्लियर? एक्शन मध्ये देन नेक्स्ट स्टेप बिकम्स आता एक्शन कसे डिराइव्ह करणार, टू डिराइव्ह like or to come up with the action you need to perform analysis. Okay, analysis। और वो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, सच एज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्ट एंड फिल्टर, पिवोट टेबल, जो हम वन बाय वन देखने वाले हैं। बट अंडरस्टैंड कि हाउ द प्रोसेस इज हैपनिंग। फर्स्ट यू हैव अ डेटा, एंड रिजल्ट आपको एक्शन डिफाइन करना है, क्लाइंट को एक्शन बताना है कि ये डिसीजन आप लो, ये राइट। और वो एक्शन बताने के लिए आपको यू नीड टू डू द एनालिसिस, एंड ड्यूरिंग एनालिसिस आपको इनसाइट्स मिलेंगे। सो अभी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इनसाइट्स। इनसाइट्स मतलब मान लीजिए ये मेरे पास डेटा है, दिस इज माय सम राइट। सो ये एज अ एनालिसिस व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिलेक्ट दिस डेटा, राइट, एंड आई कैन यूज अ फिल्टर। इसमें से टॉप सेल्स किसका हो रहा है आई कैन अंडरस्टैंड। मान लीजिए लेट्स गिव एन एग्जांपल, आई कैन यूज अ फिल्टर ऑप्शन हियर, राइट। कहाँ पे, होम टैब में जाके आई कैन यूज फिल्टर ऑप्शन हियर, फिल्टर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। एक्सपांड द सिलेक्शन मतलब सारे कॉलम पे वो अप्लाई होगा। ओके, आई हैव डन सम चेंजेस, maybe let's take some clean data. ओके, CTC का कॉलम है, लेट्स फिल्टर इट आउट। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो कि these are the maximum people who are getting some salary or this thing. So इसमें as a insight आप क्या बताओगे कि the person from operation department, the person with the Vijay who is from operation department has a highest salary. This is called a insight। मतलब ये पूरा डेटा में एनालाइज करके इसको वर्ड्स में बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इनसाइट्स। और इस इनसाइट्स का यूज करके यू नीड टू डिफाइन अ एक्शन। और insights can be, see, lot of top 10 employees having maximum salary are from operation department. This is called insight। मतलब मैं डेटा से पता चल रहा है कि क्या है, एक्चुअल डेटा में क्या है, और इसका एक्शन क्या होगा। एक्शन कैन बी, यू कैन मतलब ऑपरेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा हाई पेइंग एम्प्लॉइज है, तो if your company is not doing well, then you can reduce the number of employees from operation department. This can be the action, right? So difference, understand the difference between action, insights, and whatever we are going to do analysis. Clear? So this is the end goal, what we are going to do throughout our entire session as in the lecture। मतलब आपको as a data analyst you need to find a insights, जो डेटा दिया गया है उस पे insights निकालना है और उसका आपको actions define करने हैं उसके ऊपर। Clear? So this is the end objective, every time we'll do this only। मतलब हर रोज हम अलग अलग कुछ नया सीखेंगे, उसमें से insights ढूंढेंगे and then action define करेंगे। Clear everyone? ऑनलाइन सबको क्या करना है Yes, एज ए sir. एनालिस्ट? Yes, sir. Yes, sir. Nice, good। So then now start with the few basic things such as, for example, समेशन एज इन, मान लीजिए आपके पास सेल्स है, तो टोटल सेल्स निकालता हूं मैं, so that I can give a insight saying ये मंथ में और ये ईयर में जो भी आपके पास डेटा रहेगा, टोटल वैल्यू सोल्ड और टोटल सेल्स अमाउंट इज, ये इनसाइट्स हो सकता है। इस इनसाइट का एक्शन कैसे बनाएंगे दैट इज डिफरेंट, बट एटलीस्ट फाइंड आउट सम इनसाइट्स, राइट। सो हाउ टू डू दैट, मे बी आई कैन सिलेक्ट द, मान लीजिए ये पूरे
column है, right? First of all I need to make this as a number. Okay, यहाँ पे sales column है, तो इस sales column में आखिरी cell में what I can do, select the cell first step and then you need to use a formula or manually कर. Can I do manual is equal to one cell plus second? Is that possible here? ये plus second plus third cell? No, कितने? Only 20 records are there, but still I'm not, it's not feasible. So to avoid all this manual step, Excel provides us inbuilt formulas. तो ये formula कहाँ पे है? If you go to formulas tab, whose one? Okay. बाहर दे दो. Okay. So we got the total sales. इसके लिए to avoid automation, मतलब manual काम avoid करने के लिए Excel has already provided a formulas. तो formulas कहाँ पे है? In the formulas tab at the top here. ये formulas tab दिख रहा है? इस formulas tab में आपको सारे functions और formulas मिलेंगे. Sum, average, mean, median, mode, जो भी आपको calculation करना है, this everything will be in the formulas tab. Clear? Formulas tab के बाद you can see all these are available, but these are the separate, मतलब फाइनेंस रिलेटेड आपको कुछ कैलकुलेशन करना है, फाइनेंस में रहेगा. लॉजिकल कुछ कैलकुलेशन करना है, लॉजिकल. डेट एंड टाइम रिलेटेड कैलकुलेशन करना है, उससे रिलेटेड आप उसमें मिलेंगे. यू कैन सिंपली क्लिक ऑन फाइनेंस, कर सकते हैं. बहुत सारे हैं, मोस्टली यू विल नॉट नो. इफ यू आर वर्किंग एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, तब आपको कहाँ पे यूज करना पड़े, बट दैट टाइम यू कैन लर्न. बट दिस इज the, like this is how you can search the function. Or there's an option called insert function. तर या insert function वरती you need to click and you can option here, you can search whatever operation you want to do. If you want to do average, you can search average, AVE, enter. You will see below some average, average A, average related, all the functions available here. If you want to do sum, you can do sum, right? Enter. Here you will get all the formulas. You don't have to go and find where the sum operation is there, where the calculation is there. If you want to count something, you can count. Okay, clear? So now current requirement is we need to find a sum operation. So I will search a sum, enter, and find this first option here, sum, right? So I can use the sum and it will ask what to select. So here you can see here what is giving. This is nothing but a location, right? I3 to I21. So I can give the specify the location. Let me clear this. Use this button to hide. A button click करू तुम्ही hide करू शकता या मेनूला, हे बघा. Okay, then select मला काय addition करायचं आहे, तर click यहाँ तक drag करना है, right? Press enter. Enter करने से you can see already it is populated here. I2 I20. So you got the values. So value is 50,473. So मतलब 50,000 का सेल हुआ है. जो भी आपके पास डेटा रहेगा, not only ये this is just a dummy data, but in real you can use this option. So first level of analysis is सबका total करना है. Maybe इसको break कैसे करना है, month wise, year wise, that we'll see. But current requirement is we'll go slowly. We'll start building small insights. मतलब छोटे छोटे insights निकालना शुरू करेंगे and then we'll gradually move towards category wise trend analysis जो आपने mention किया. So all those clear. So this can be one of the approach how you can do the sum. Not only this, but you can use a average also. Average sale. So average को कैसे करना है? We'll take this example only, or you take average quantity of the average. मतलब quantity average. So I will select the cell
and I want to find the average. What I can do? I will select the cell, go to formulas, insert function, select the average, search my average, AVE, you can type or type completely. So average is this. Select the second option, press right, and then I will clear this. It will auto select. If that option is there, you can use directly, but you can use this arrow here. Okay, so yeah, arrow वरती click करा, the quantity. Once you select the quantity, select here. इथे बघा, दिसतंय arrow down. Click on this. A menu open will, and then select on OK. You can see this 6. So can anybody tell me what is the significance of this average? 6 average आलाय. What does this means? कारण हे तुम्हाला इनसाइट काढायचे आहेत ना, आणि याचा डिसिजन पण बनवायचा आहे. So you should understand what is that average means, or value means 6. Okay, so average 6 is a average. I know quantity column's average 6 आहे, because I used that formula. But I want, कारण ultimately you need to find out some insights. जे दिसतंय ते नाही सांगायचं. What is the business? This is called a business business meaning. याचा business meaning काय आहे? Mathematically I found out 6. Yes, try to define. Define. मी as a business owner आहे आणि तुम्ही मला सांगता क्वांटिटीच्या कॉलमचा एव्हरेज 6 आहे. Will that make any sense? मी काय करू एव्हरेज क्वांटिटी 6 आहे तर? So you need to understand तुमचा ultimately objective क्या है ये समझिए. This is important. फॉर्मूला लगाना है, कोई भी लगा सकता है, नॉट अ बिग डील. आपको नहीं आया तो गूगल यूज करो, चैट जीपीटी यूज करो, इट विल पॉसिबल. बट एज अ बिजनेस ओनर आपको, और एज अ डेटा एनालिस्ट, यू नीड टू कम्युनिकेट दिस टू अ बिजनेस ओनर और आपके क्लाइंट को, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू रन्स अ कंपनी, वो भी एवरेज निकाल सकता है ना, और ऐसा बड़ा, फिर आपको क्या, क्यों पैसा देना है एवरेज निकालने का? तो व्हाट इज दैट मीनिंग? Yes, Praveen Sheikh, you can tell us. What is the significance of that 6? आपको यही काम करना है. As in, okay, first of all, try to understand the importance. फॉर्मूला लिखना, एक्सेल में फॉर्मूला बनाना, गूगल सर्च करना, ये आपका काम नहीं है. That is not your job. Your job is to give insights to the client. Data understand करना. क्योंकि currently if you have only 20, 10, 20 rows हम देख रहे, at large scale, like the company in which I work, हर रोज 2 करोड़ लाइन आइटम डेटा आता है. 2 करोड़, that's a minimum. 2 करोड़ is minimum. I can show you image. So in a day 13 करोड़ का कुछ डेटा आता है. So as a person or as a human being, do you think कि 2 करोड़ का लाइन में एनालाइज करूंगा and then I should tell something? No, right? So that's why they hire a people like data analyst who can figure it out कि वो 2 करोड़ लाइन आइटम में क्या मीनिंग है, और एज अ बिजनेस ओनर वो 2 करोड़ के जो लाइन आइटम आज के है उससे क्या जनरेट हो रहा है. That's why they pay very high salary or lot of money to data analyst, क्योंकि उसका एक डिसीजन लोगों को फायर कर सकता है, आपको करोड़ों सेव कर सकता है कंपनी का, और बिजनेस भी बढ़ा सकता है. सो एज अ डेटा, सो इसलिए हर एक कंपनी में, टेक एनी इंडस्ट्री, ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री लो, हर एक इंडस्ट्री में डेटा एनालिस्ट है, हर एक उसके डोमेन नॉलेज है, एंड देन यू नीड टू गिव अ इनसाइट. सो जितना अच्छा इनसाइट्स, जितना अच्छा एक्शंस दोगे आपको एज अ ओनर, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा. सारे क्लाइंट ऐसे रहते हैं, अरे मेरा लॉस हो रहा है इस साल बहुत ज्यादा, हाउ टू फिगर इट आउट, इसको रिड्यूस कैसे करना है, ये आपका अल्टीमेट जॉब है. और नेक्स्ट ईयर अभी यूक्रेन वॉर शुरू है, और यूक्रेन अभी उससे लेटेस्ट इराक ने इजराइल पे अटैक किया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा. सो यू शुड फिगर इट आउट. अभी हमारे कंपनी में वो चल रहा है, क्योंकि हम लाइक इन रियल वर्ल्ड वी डू सप्लाई चेन एनालिसिस, लाइक आवर क्लाइंट इज इन यूएस, और वो यूएस से 190 कंट्रीज ऑलमोस्ट
दुनिया के सब कंट्री में उसके प्रोडक्ट्स है, इवन इन इंडिया आल्सो। तो हमें एट द मोमेंट वो न्यूज ट्रिगर हुआ, वी नीड टू गिव हिम इनसाइट्स कि उसके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। इराक ने इसराइल पे अटैक किया, उसका इम्पैक्ट क्या है। सो वो अगले दिन बताना पड़ेगा ना उसको कि आपका सर इतना, एज पर द न्यूज इसराइल का कंप्लीट ब्लॉकेड है, मतलब वहां पे मूवमेंट नहीं है, एयर मूवमेंट, एयर के सारे कार्गो शिपमेंट्स ब्लॉक है। तो हमें क्विकली एनालाइज करना है उसके डेटा में कि यहाँ से आगे जो भी 1-2-3 दिन रहेंगे, उस 2-3 दिन में और एक हफ्ते का, मे बी वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ 1 वीक, नेक्स्ट 1 वीक में इसराइल में कितने शिपमेंट कार्गो जा रहे हैं और उसका वैल्यू क्या है, उसके कस्टमर कौन है, उनका सारा ईमेल आईडी, ये सब हमें बताना है विद इन नेक्स्ट डे, सो दैट सारे कस्टमर को पता चले कि ये इम्पैक्ट हुआ है बिजनेस का। क्योंकि जब मटेरियल भेजोगे तभी तो आपको पैसा मिलेगा ना। इफ द क्लाइंट इज इन इजराइल, उसको जब मटेरियल मिलेगा तभी पैसा देगा ना। कि ऐसा रहता है कि एडवांस दे दो फिर मैं बाद में भेजता हूँ, प्रीपेड जो आप करते हो, अमेजोन कंपनीज डोंट वर्क लाइक दैट। ओके, वो क्रेडिट पे काम करते हैं, एज इन आप आज मटेरियल दोगे तो 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद आपको मिलेगा। सो एज अ एनालिस्ट, सो दैट्स द योर जॉब, सो विद इन दैट टाइम यू नीड टू एनालाइज, सो दैट्स व्हाई। तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, फॉर्मूला यूज करना, दिस इज नॉट द एंड ऑब्जेक्टिव। एक्सेल सीखने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, कब यूज करूं, कैसे यूज करूं, दैट इज नॉट योर ऑब्जेक्टिव। एज अ एनालिस्ट वो कोई भी कर पाएगा, नॉट अ बिग डील, उसके डेटा एनालिस्ट नहीं लगेगा। जो भी एक्सेल का कोर्स करो यूडेमी से, आपको फॉर्मूला लगाना आ जाएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग। ये 6 का मीनिंग क्या है। इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ेगा सर उसको। ओके, सो ऑनलाइन एनी रिस्पॉन्स, what is the meaning of that 6? Maybe 1 or 2 response. चलो यही काम करना है आपको, फॉर्मूला निकालना इज नॉट योर के थिंग। हिसाब से देखें तो या तो पर वीक या तो पर मंथ है जो भी डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है। हाँ, ओवर द रीजन्स, ओवर द जो भी आपने कंट्रीज बताई है, वो सेल्स हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, ऑनलाइन एनी रिस्पॉन्स क्विकली। अरे कितने लोग है, 17 लोग है, कोई तो बोलो। 6 का मीनिंग क्या है, बिजनेस मीनिंग, एज अ बिजनेस ओनर वो बताइए मुझे। ओके, सो द मीनिंग इज एवरेज कस्टमर, जो भी मैं सेल करता हूँ, एनी ट्रांजैक्शन आई टेक, आई सेल मिनिमम 6 क्वांटिटी। ऑन एन एवरेज में 6 क्वांटिटी तो बेचता हूँ। तो इन अ डे मुझे 10 ऑर्डर आ गए, तो मुझे गारंटेड पता है कि 60 तो मेरे प्रोडक्ट बेचे, 60 आइटम, राइट। सो दिस इज द एग्जैक्ट बिजनेस मीनिंग बोल सकते हो कि ऑन एन एवरेज कोई भी आपको ऑर्डर आया तो यू कैन से 6 पीस तो मेरे जा रहे हैं। सो लाइकवाइज दिस इज द मीनिंग। एज अ बिजनेस ओनर मुझे ये पता चलना चाहिए ना कि मेरा आज एक ट्रांजैक्शन हुआ, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, तो ऑन एन एवरेज मैं इतना बोल सकता हूँ कि ठीक है, शेष के हिसाब से आई कैन सेल 60 क्वांटिटी। सो द बिजनेस मीनिंग इज ऑन एन एवरेज हर ऑर्डर के पीछे 6 नंबर का तो सेल हो रहा है। सर आप बोलोगे सर यहाँ पे 6 नहीं है तो एक ही क्वांटिटी दिखा रहे हो आप तो, राइट। इफ यू टेक दिस एग्जांपल फर्नीचर, राइट, बट आई सेड ऑन एन एवरेज, दिन में 100 रहेंगे, 200 रहेंगे, 300, वॉट एवर द क्वांटिटी, बट ऑन एन एवरेज 6 रहेगा। तो ऐसे ही मंथली डेटा रहेगा, तो ऑन एन एवरेज इन अ मंथ आई कैन फाइंड आउट सम क्वांटिटी। तो उसके हिसाब से आई कैन प्लान एनीथिंग। मे बी आई वांट टू प्लान इन्वेंट्री। मान लीजिए आपका चेयर का कुछ शॉप है, राइट, चेयर बेच रहे हो आप, तो महीने में ऑन एन एवरेज आपको पता है कि हर महीने हर ऑर्डर के पीछे 2 चेयर तो मेरे जाते हैं, राइट। तो आपको पता चला कि इस महीने 50 ऑर्डर गए हैं, तो रफली कैसे कैलकुलेट होगा, 50 इंटू 2, मतलब 100 चेयर तो आपने बेचा है, राइट। फिर 100 इंटू एवरेज प्राइस ले लीजिए, तो आपको मिलेगा एवरेज सेल, फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट। तो फिर इससे बिजनेस, एज अ बिजनेस ओनर मुझे पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज मैं 10,000 तो कहीं नहीं छोड़ रहा, मेरा 10,000 तो प्रॉफिट हो ही रहा है। कैन आई कंक्लूड लाइक दिस? I gave you example of quantity, but you
there is a profit column also. यहाँ पे राइट ओवर द मंथ तो आपको निकाल सकते हो रफली, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर मैं आज का नहीं सोच रहा हूँ ना, मुझे कल का भी प्लान करना है, मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, राइट। मान लीजिए मुझे नया एक शॉप खोलना है, ओके क्लियर, जो आप चेयर बेच रहे हो नया शॉप खोलना है, तो उस शॉप के मैंने लोन लिया है, तो आपको लोन लेते समय आपको पता होना चाहिए ना कितना आप अर्न कर रहे हो, कितना खर्चा जा रहा है, कितना एम्प्लॉय का सैलरी देना है, किसको हायर करना है, नहीं हायर करना है, राइट। तो रैंडमली मैंने बोल दिया कि अरे मेरे पिछले महीने 50,000 आया था, इस महीने तो 10,000 सिर्फ सेल हुआ, तो फिर मैं बैंक को क्या बताऊंगा, वेदर विल आई बी एबल टू टेक अ रिस्क, रिस्क क्यों ले, कैसे प्रिडिक्ट करना है। सो व्हाट आई कैन डू, ऑन एन एवरेज मेरा हर महीने में 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, 4,000 मेरा खर्चा हो रहा है एम्प्लॉय के ऊपर, 6,000 मेरा बच रहा है सेविंग में, तो उसमें से मैं 3,000 एज अ ईएमआई भर देता हूँ और एक नया शॉप खोल देता हूँ। 3,000 एग्जाम्पल था, 3 लाख 3 करोड़ कुछ भी बोल सकते हो। सो दैट इज वाई द सिग्निफिकेंस, तो ये सिग्निफिकेंस समझिए इसका, एवरेज कैलकुलेट करना, सम करना, आई कैन शो यू काउंट, और बहुत सारे बेसिक फॉर्मूला है, बहुत हाई फाई फॉर्मूला है, बट as a analyst you should be able to convert that statistical or mathematical calculations. Okay, clear. So there's one more formula which we can see, count. What is the count, मतलब कितने count है in a month, how many sales order I received. count मतलब क्या, कितने line item है और कितने product में बेच रहा हूँ, right. So how to use the count function, same, you need to select the cell, formulas, go to insert function, then select the count, 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 you can use count. Okay, by the way there are many combinations of count even with the cell, count a, count blank, count if, count ifs, so we'll see few of them, but other things are depending, मतलब if is nothing but a conditional count, मतलब ये condition satisfy हुआ तो count करो, like this, count blank, जितने blank है उतने count करना है आपको, count a is nothing but a unique or something it counts, as in repetition है तो वो count नहीं करेगा उस value को. We'll go with the basic count and then we'll see. Then again I will hide the cell, first remove the value, click here, select that, and okay. So there are 19 counts, right. 19 line items are there, maybe you can use count for count the number of items, और इस महीने में कितने ट्रांजैक्शन हुए, these are nothing but transactions, right. तो काउंट से आपको पता चलेगा कितने ट्रांजैक्शन हो गए, right. So these are the, you can use it to create some insights, मतलब on an average मेरे दिन के 50 ट्रांजैक्शन हो रहे, 50 बार और 100 200 डिपेंडिंग जितने आपके ऑर्डर्स हैं, क्लियर सबको. देन देयर आर फ्यू थिंग्स, मतलब कंडीशनल, आपको कुछ डेटा जनरेट करना है, ऐसा नहीं कि यू ओनली गेट, मतलब आपके पास डेटा दिया गया है उस पे एनालिसिस करना है, दिस इज नॉट द आइडियल केस, यू कैन क्रिएट सम डेटा इफ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट, मतलब ऐसा कुछ आपको लग रहा है इससे मुझे इंसाइट्स मिलेगा और ज्यादा, और उससे मैं एक्शन ले लूंगा. सो व्हाट यू कैन डू, वी कैन यूज सम इफ स्टेटमेंट्स एंड ऑल, मतलब इफ वगैरह यूज करके यू कैन क्लियर और जनरेट सम कंडीशन, as in if profit is more than 60, mark it as high profit item, फिर low profit item. So similarly those conditions you can create and then उसके ऊपर फिर आप analysis कर सकते हो. So that you can do is equal to, or sorry, select the cell or column, formulas, insert function, if, conditional if, right. Okay, and you can select logical test, greater than 50 or 250, something like this you can mention, value if true,
high value, low value, you can mention the conditions. As in, आप condition mention करते हो, and then you can see. We'll see that tomorrow actually planned. But wanted to understand कि what is the significance. These are very basic formulas. ऐसा नहीं कि every time you need to use. But try to understand how we started. पहले तो आपको as an analyst data मिलेगा. Then you have to do some data understanding part. कौन सा column है, which column is there, and then you can use some basic formulas or functions, sum, count, average वगैरह. And then if you want to create some data, right? Data creation मतलब we'll see. इसका एक example with example we'll do. कल हम इसका एक real world example देखेंगे where you need to think out of the box. Out of the box says don't rely on whatever is given. तो उसका significance अलग है, that we'll see. But try to understand कि how is the process going on. Understanding, then simple you can use, and then इसके बाद हम कल जो देखेंगे which will be a quick insights. So there are some options, मतलब conditional formatting है, sort है, filter है. So that we'll use and we'll try to come up with the quick insights. Quick insights मतलब directly data देख के immediately what I can do. I don't have to use a complex functions or formulas वगैरह जो हम pivot table हो गया, नहीं तो आपको कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे ऑपरेशंस नहीं करना है उसके ऊपर. डायरेक्टली ये डेटा दिया गया है एंड इसके ऊपर आपको इनसाइट फाइंड आउट करना है. So that we can see, not an issue. Clear? So what all we did today. But so I have one question. So why do you think कि कंट्री दिया गया है, कौन से कंट्री से ऑर्डर आया है, ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास. So why do I have a region and market column? Or one more option, or one more specific, sir. yes Praveen. सर स्पेसिफिकली कौन से कंट्री में कौन सी जगह से आया है वो ऑर्डर, या फिर सप्लाई करना है कोई भी प्रोडक्ट, उसका एनालाइज कि ये स्पेसिफिक कंट्री में इस लोकेशन में इतना डिमांड है या इधर सप्लाई करना है. मैडम वो डिलीवरी लोकेशन नहीं है, दैट इज ओनली ऑर्डर लोकेशन. मतलब कहाँ से ऑर्डर आया है, दैट इज द लोकेशन. डिलीवरी लोकेशन अलग रहता है, मतलब आपको कहाँ डिलीवर करना है, दैट डेटा इज डिफरेंट. वो यहाँ पे दिया नहीं है. यहाँ पे सिर्फ आपको ये है कि कौन से कंट्री से ऑर्डर आया है, दैट्स द लोकेशन हियर. तो ऐसा भी हो सकता है मतलब ये कंट्री से आया पर कौन से स्पेसिफिक स्टेट या ऐसे लोकेशन में है, ये स्पेसिफिक जगह से ज्यादा ऑर्डर है. Okay, that can be correlated. मतलब you are almost there, as in you are on the right track. आप जो think कर रहे हो वो सही track पे है. Let me give one more example. मतलब आपने सब डेटा आ गया, आपने अंडरस्टैंड भी किया, सब पता है आपको कौन से कॉलम में क्या है क्या नहीं है. ओके, एंड देन आपने थोड़ा वो एनालिसिस करने के लिए बोल भी दिया कि ये इनसाइट से ये है. सो देयर इज वन मोर थिंग. आपके पास प्रोडक्ट के डिटेल है, राइट? तो फिर सब कैटेगरी भी क्यों दिया गया है, कैटेगरी क्यों है? मान लीजिए सिर्फ कैटेगरी दे देता हूँ फर्नीचर, क्योंकि ये तो टेबल भी फर्नीचर है, चेयर भी फर्नीचर है, राइट? और सम फोन्स भी टेक्नोलॉजी है, कॉपियर मशीन भी टेक्नोलॉजी है. तो फिर व्हाई ऐसा मल्टीपल और रिपीटेटिव डेटा क्यों दिया गया है? स्पेसिफिक कैसे पता चलेगा कौन सा ऑर्डर, स्पेसिफिक कैसे पता चलेगा ना कौन से टेक्नोलॉजी तो उसमें ओके, इससे मान लीजिए मैंने डिलीट कर दिया डेटा, तो इससे क्या डिफरेंस क्या होगा? तो फिर स्पेसिफिक सर नहीं कर पाएंगे टेक्नोलॉजी, बट सिर्फ टेक्नोलॉजी से क्या सब कैटेगरी से पता चल रहा है ना. ओके, बट मैडम यहाँ पे फोन्स में भी अलग अलग फोन है. देखिए नोकिया का फोन है, सैमसंग का है, मोटोरोला का है, सैमसंग का है. तो मैं एक काम करता हूँ, सब कैटेगरी डायरेक्टली ब्रांड का नाम लिख देता हूँ, उससे और स्पेसिफिक मिलेगा आपको. नोकिया का फोन, सैमसंग का फोन, और क्लैरिटी और इनसाइट. ओके,
ऑनलाइन एनीथिंग एनी इनसाइट्स हियर पीपल आर सेइंग इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए हमने सेपरेट कर दिया ऑनलाइन। सर उस मार्केट में किस कैटेगरी के लोग ज्यादा है और किस चीज की ज्यादा डिमांड है तो हम इजीली टारगेट कर सकते हैं फिर। ओके ओके, तो फिर एक काम करते हैं मैम, कैटेगरी डिलीट कर देते हैं, राइट। कैटेगरी फिर एक्स्ट्रा है, सब कैटेगरी आई कैन से, चलो फोन है तो फोन है, अप्लायंस है तो अप्लायंस, कॉपियर मशीन, फिर कैटेगरी डिलीट कर देते हैं, है ना। क्योंकि हर रोज इतना डेटा स्टोर करना इट्स एक्सपेंसिव, ऑप्टिमाइजेशन कर देते हैं, चलेगा। Sir is a correlated category. सॉरी, Correlated category. यस, There is a technologies like mobiles. yeah, I understood, there is a relation, I understood, as in technology में दो तीन है, but क्यों, why, my question is why। so जो हमने डेटा अंडरस्टैंडिंग किया ना, जो आपने कॉलम सीखा देखा, वट एवर द अंडरस्टूड, बेसिक यू नीड टू फिगर इट आउट, व्हाई दिस कॉलम इज गिवन। ये जब आपको पता चलेगा यू विल लाइक, मतलब आपने मान लीजिए आपके कंपनी में 2 एनालिस्ट है, 2-3 आपके टीम में रहेंगे, हर एक टीम में रहते हैं, देन यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ डिफरेंस एज अ सिंपल एनालिस्ट। और जो भी लोग रहते हैं एज अ डेटा अंडरस्टैंडिंग में क्या करते हैं कि हाँ ये कॉलम है, ये इसका मीनिंग ये है, इसमें डेटा है, बट नोबडी टेक्स एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड व्हाई। सो आप इफ यू ट्राई टू इन्वेस्टिगेट और थोड़ा एफर्ट्स मारोगे, व्हाई दिस कॉलम, यही क्यों डेटा दिया गया है मुझे, दैट देन यू विल हैव अ बेटर करियर ग्रोथ। जो बोलते हैं ना 2 साल में डबल पैकेज, 3 साल में डबल, ऐसे ही नहीं होता, यू नीड टू टेक एफर्ट। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। सेम डेटा में किसी आपके टीममेट्स को दूं, तीनों का अलग आना चाहिए, एज वेल एज आपको दोनों में से आपको ज्यादा आना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ज्यादा एज इन डिफरेंट होना चाहिए। हाउ दैट डिफरेंस विल बी क्रिएटेड बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाई। सो एवरी टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई, कोई भी हो, डेटा ऐसे क्यों दिया गया है, व्हाई प्रोडक्ट आईडी लाइक दिस, प्रोडक्ट आईडी क्यों दिया गया है, प्रोडक्ट आईडी से क्या ही इंसाइट निकालोगे आप। मतलब आपने बोला, चलो कैटेगरी बोला, सब कैटेगरी बोला, मार्केट बोला, सब कुछ बोला, प्रोडक्ट आईडी का क्या जरूरत है फिर, आई विल डिलीट प्रोडक्ट आईडी देन। नहीं सर, इसमें से प्रोडक्ट क्या आईडी इंसाइट, इज रियली इम्पोर्टेंट। हाउ इज इट इम्पोर्टेंट, वही मतलब एज अ बिजनेस ओनर बताइए ना, मतलब जो प्रोडक्ट आईडी 379 पे सेल हो रहा है वो मेरा लकी है, इट इज गिविंग हायर प्रॉफिट, ऐसा कुछ है क्या रिलेशन। नहीं सर, अभी सपोज कोई फोन लिया है, पर वो फोन का भी स्मार्टफोन दिया हुआ है, और स्पेसिफिक कोड भी होता है ना फोन का आईडी, तो वो ठीक है मैडम, रहेगा ना, वो कस्टमर के लिए रहेगा, बट एज अ बिजनेस ओनर मुझे क्या लेना देना है उससे। मान लीजिए प्रोडक्ट आईडी देख के मैं बिजनेस एक्सपांड करने वाला हूँ, क्या इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, और जो प्रोडक्ट आईडी ऑड नंबर में खत्म हो रहा है उससे प्रोडक्ट मेरा मार्जिन बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ है क्या। और मेरे भटजी ने बोला है कि 6 नंबर प्रोडक्ट आईडी जिसपे है उस पे सारा स्टॉक करके रखो, उस पे सेल दो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसे कुछ है क्या। सर वो फिर एनालाइज कर रहे हैं कि ऐसा अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी में कितना और ऑफिस सप्लाई में कितना है, तो उसके हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है। फिल्टर लगा के सर, फिल्टर आउट कर सकते हैं वो डेटा। ओके, सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी पे फिल्टर लगाना है। आपने जो बोला ना कैटेगरी एंड सब कैटेगरी में क्यों है, ओके, तो मैं जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक बिजनेसमैन अगर थिंक करूँ तो मैं एक ऑल इन वन शॉप खोल के नहीं बैठा हूँ, एक कैटेगरी लेके बैठा हूँ। जैसे अगर मैं फर्नीचर शॉप खोलता हूँ तो फर्नीचर इज माय प्राइम कैटेगरी, एंड उसमें मेरी सब कैटेगरी क्यों है, क्योंकि मेरे अलग अलग उसमें जैसे चेयर्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, ये मेरी सब कैटेगरी इसलिए है। एंड अगर आप प्रोडक्ट आईडी के बारे में बात करो तो ये आई थिंक कि सर आप जो डेटा रिकॉर्ड करते हो ना, जैसे अलग अलग टैली प्राइम वगैरह जो आपकी सिस्टम रिकॉर्डिंग होती है, तो उसके लिए आप प्रोडक्ट आईडी देते हो, जिससे आपको स्पेसिफाई रहता है कि आपकी रिकॉर्ड लाइक मेरा क्या किस जगह पे किस ग्रोथ यहाँ पे सेल हो रहा है, डिमांड हो रहा है, या फिर मार्केट क्या डिमांड कर रहा है, कस्टमर टेस्ट जिसे बोलते हैं सर। ओके, ओके, गुड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड एसक्यूएल, यहाँ पे एसक्यूएल कितने लोगों का हुआ है और सीख रहे हैं।
ठीक है, डे 1 लेक्चर किया है, डे 1 डे 2 देयर इज कंसेप्ट कॉल्ड प्राइमरी की, फॉरेन की, और आपको क्या लगता है डेटा इतना ही रहेगा? मल्टीपल टेबल रहेंगे ना? तो कैसे ज्वाइन मारूं मैं? प्रोडक्ट नेम के ऊपर? देन सिंपल ना भाई, वो यूनिक की है. इफ आई वांट टू यूज दिस डेटा इन सम सिस्टम समवेयर, समथिंग हैज टू बी देयर ना. सो थोड़ा ओपन माइंड रखिए. यू आर डूइंग सम, आप पूरा कोर्स सीख रहे हो ना, एसक्यूएल, पाइथन, एक्सेल, सो एवरी. तो उसमें से डेटा, व्हाट डेटा इज सेइंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड. मतलब व्हाई वो कॉलम दिया गया है. हर बार ऐसा नहीं कि बिजनेस एज अ बिजनेस ओनर है उस पर चिपकाना है तो प्रोडक्ट आईडी के ऊपर चिपकाओ, ऐसा नहीं है ना. यूनिक एंड नॉट नल, हाँ है कि नहीं, चेक कीजिए वो यूनिक एंड नॉट नल, इज इट देयर और नॉट. और ऐसा नहीं कि इनसाइड्स देना है मतलब हर एक कॉलम में देना है. यूज आप सीखिए. दिस इज कॉल्ड अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. जो आप काम कर रहे हो, दिस इज व्हाट इट इज, राइट. जो भी ऑनलाइन दोज गाइस जिनका एसक्यूएल नहीं हुआ है, एसक्यूएल के बाद आपको समझेगा कि उसका मीनिंग क्या था. सो व्हेनेवर वी डाउनलोड एनी डेटा, राइट, इसके मल्टीपल टेबल्स बनते हैं और ये टेबल कहीं पे भी स्टोर होगा. और आपको कुछ क्वेरी करना है तो आपको प्राइमरी की यूज करना पड़ता है. एंड द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी की इज यूनिक एंड नॉट नल. तो इसीलिए कोई भी डेटा सेट आपके पास आए उसमें प्राइमरी की होता ही होता है. प्राइमरी की नहीं रहेगा नहीं तो फॉरेन की रहेगा. दैट यू शुड नॉट यूज इन एनालिसिस. मतलब उतना नहीं मत करो, है ना. मतलब हो गया, वो यूज करोगे तो खत्म. क्लियर. एटलीस्ट थोड़ा कीप इट ओपन, कीप इट ब्रॉड माइंडेड. मतलब क्या हो रहा है. सो दैट्स व्हाई डेटा अंडरस्टैंड कीजिए, नॉट ओनली फ्रॉम कॉलम और उसके मीनिंग. आपने जो अंडरस्टैंड किया दैट इज बिजनेस पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड कीजिए. एंड देन थिंक ऑल्सो कि इसका यूज कहाँ हो रहा है, वेयर दिस डेटा इज गेटिंग यूज्ड, राइट. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. ऐसा नहीं कि ये टेबल कहीं एसक्यूएल में रहेगा, किसी ने क्वेरी किया होगा, उस क्वेरी का ये आउटपुट है, राइट. सो ऑल दोस थिंग्स यू शुड बी able to correlate or relate at least how things are there. That's why understanding why part is important. And just to give you category and sub category, कंपनी में आपको क्या लगता है सिर्फ एक आदमी रहता है क्या? एक ही बॉस रहता है, वो सब कुछ हैंडल करता है? ऐसा होता है क्या कंपनी में? नहीं. क्या रहता है? हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, राइट. मतलब एक सीईओ रहता है, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, वीपी, फिर हेड रहते हैं, कंट्री हेड, प्रोडक्ट हेड, राइट, मैनेजर्स, देन डेवलपर्स. अब बोलिए कंट्री का जो डेटा दिया गया है तो हर एक कंट्री का कोई कंट्री हेड रहेगा, राइट. तो उस कंट्री हेड को कोई बताना भी पड़ेगा ना इनसाइड, भाई तेरे कंट्री में इतना लॉस हो रहा है, इतना प्रोडक्ट है. somebody has to do the analysis. तो उसके लिए कौन सा कॉलम चाहिए फिर मुझे? कंट्री, राइट. फिर कंट्री के बाद रीजन, मतलब 4 कंट्री का. मान लीजिए मेरा अभी इन आवर केस आवर क्लाइंट हैज ऑलमोस्ट 190, तो ऑल कंट्रीज में है, बट बाय एंड लार्ज ही हैज ऑलमोस्ट, मान लीजिए 120 है, 130 कंट्री हेड है उनकी कंपनी में. अभी 130 लोग डायरेक्ट सीईओ और ओनर को रिपोर्ट करेंगे क्या? नहीं. तो इसके बीच और लोग, मतलब 4-5 कंट्री हेड का मिला के एक रीजन हेड, और 10-20 कंट्री हेड को मिला के एक रीजन हेड. फिर उसके बेसिस पे एनालिसिस. रीजन हेड मान लीजिए 20 लोग हैं, राइट. तो 20 लोगों का अलग से एनालिसिस होगा. लिटरली इन आवर कंपनी एवरी देयर आर, मतलब ये जो टॉप लेवल लोग है, रीजन हेड, कंट्री हेड, इनके लिए पूरा डेटा एनालिस्ट का टीम बैठता है, टीम. क्योंकि इनके पास उतना प्रोडक्ट रहता है, उतना वॉल्यूम रहता है. ओके. सो अभी जो हम डेवलप कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड का पूरा डेटा एक जगह पे लेके आना है और उस पे इंसाइट्स देना है. उसका नाम है जेसन करके एक आदमी है. उसके लिए हमारे कंपनी में 200 लोग काम कर रहे हैं. उसका 1 घंटा, वो सिर्फ सुबह 1 घंटा देखेगा रिपोर्ट, दैट्स इट. उसके लिए 200 लोग काम कर रहे हैं और वो सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, मतलब अगले 2-3 साल के लिए काम करेंगे उतना, क्योंकि उसका उतना सैलरी है. ही इज टॉप लेवल इन आवर द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन. मतलब इतना बड़ा है कि वो प्राइवेट जेट से घूमता है.
वो इंडिया कभी आता है तो प्राइवेट जेट से आता है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता कि एयरपोर्ट पे जाए, फ्लाइट चेक इन चेक आउट जो भी है उनका। क्यों आवर क्लाइंट इज, दुनिया में फॉर्च्यून 500 का लिस्ट आपने सुना होगा, मतलब दुनिया के जो सबसे बड़ी कंपनी है उसमें से टॉप 10 में हमारा क्लाइंट आता है। ओके, सो बहुत बड़ा है, सो लोग भी उतने बड़े हैं, और उनका एक डिसीजन पूरा लाइक इंडिया का बिजनेस बंद करना है, वो आदमी डिसाइड करता है, चलो इस कंट्री से फायदा नहीं हो रहा है, यहाँ से बिजनेस बंद, तो उस कंट्री से करोड़ों का नुकसान होता है। तो इसीलिए दिस पीपल, इनके लिए इतने 200-300 लोग काम करते हैं, राइट। सो यू विल बी पार्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे आप वन ऑफ, दैट्स व्हाई अंडरस्टैंड द कॉलम, ये क्यों कॉलम दिया गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप किसको रिपोर्ट कर रहे हो, आप कंट्री हेड को रिपोर्ट कर रहे हो, आप रीजन हेड को रिपोर्ट कर रहे हो, आप मार्केट हेड को रिपोर्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको इनसाइट्स निकालना है, राइट। आप रिपोर्ट कर रहे हो रीजन हेड को, फिर उसको बता रहे हो कि कंट्री का डिटेल, इस कंट्री में इतना है, दैट इज नॉट मोर यूजफुल, राइट। सो अंडरस्टैंड कि क्या काम है, आपको करना क्या है, किसको रिपोर्ट कर रहे हो, what is expected from your side. So all these things are important. देखिए, if I tell you frankly, एक्सेल सीखना इज नॉट अ बिग डील, कोई भी एक्सेल सीख सकता है, ऐसा नहीं है कि आपने एक्सेल सीखा है और आपको जॉब मिला, आपको जॉब एक्सेल आता है इसीलिए नहीं मिलेगा, आपको डेटा एनालाइज करके क्या इंसाइट्स दोगे, कौन से लेवल के आदमी को इंसाइट्स दोगे, उसका एक्शन क्या रहेगा, इस पे जॉब मिलेगा। सो प्लीज बी क्लियर, ऐसा नहीं कि मैंने मतलब कल उठ के 150 फॉर्मूला है एक्सेल के, मैंने पूरा रट लिया, मुझे सब कुछ एक्सेल आता है, तो इससे आपको जॉब नहीं मिलेगा। सो ट्राई टू बी क्लियर, एक्सेल का फॉर्मूला यूज करना, एक्सेल में ये आता है वो आता है, इससे आपको जॉब नहीं मिलेगा। सो बी क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिए, आपको क्या करना है, एंड क्या है आपका, एंड इंसाइट जनरेट करना है, गिव द एक्शन टू अप्रोप्रिएट पीपल, एक्शन ऑन अप्रोप्रिएट कॉलम्स। ऐसा नहीं कि नल प्राइमरी की पे उठा के कुछ रैंडमली इंसाइट्स निकाल, आप अभी ऐसा नहीं कि जोक्स अपार्ट, बट इफ आई डोंट नो आई कैन, मतलब मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम हम यूज करते हैं, इंटरेस्टिंग, इफ यू प्रोवाइड अ प्रोडक्ट आईडी, इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, बट मशीन लर्निंग का जो हमारा एल्गोरिदम है उसमें ये डेटा पास करोगे तो उससे वो रिलेशन निकालेगा। द एग्जांपल विच आई गेव यू ना, कि इवन नंबर जहां एंड होता है वहां पे मेरा मार्जिन बहुत ज्यादा है, दिस इज रियल वर्ल्ड एग्जांपल, हमारे कंपनी में ऐसा हुआ है, पीपल हैव प्रिडिक्टेड, ऑब्वियसली है ना, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है भाई वो, उसमें डेटा कुछ भी गार्बेज भी डालो और कुछ ना कुछ इंसाइट्स देगा, कुछ ना कुछ रिलेशन डिफाइन करेगा, उसको पता नहीं ना। एआई एमएल जो बोलते हैं ना जॉब रिप्लेस करेगा, करेगा, जो लोग इनसाइट्स प्रोडक्ट आईडी पे देंगे उनका पक्का निकालेगा वो जॉब, राइट। भाई पता ही नहीं क्या कर रहे हो तुम, राइट। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग इनसाइट्स ऑन सच कॉलम जिसका सिग्निफिकेंस अलग है, बट आप उसको यूज कहीं और कर रहे हो, तो इनका पक्का जॉब जाएगा, बट एआई को ये पता नहीं कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो दैट्स व्हाई यू अंडरस्टैंड कि आपको काम क्या है, एक्सेल यूज करना ये इट्स नॉट अ एंड रिजल्ट, मुझे एक्सेल आता है ये एंड रिजल्ट नहीं है, एंड रिजल्ट अलग है, क्लियर। सो वट एवर फॉर्मूला वी सॉ, सम काउंट, इफ थोड़ा प्रॅक्टिस कीजिए आज, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टँड, ऐसा नाही की मागचा पार्ट काय ते मागचं पुढचं पार्ट मागचं सपाट असं नको व्हायला, मतलब ऐसा नहीं कि आपको एडवांस आता है बट बेसिक कुछ नहीं आता, राइट। सो गुड टू हैव अ नॉलेज, कैसे यूज करना है, कौन सा फंक्शन, सम, काउंट, ये सारे फंक्शन कैसे यूज करना है, दैट इज यूजफुल, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई, जो भी डेटा अंडरस्टैंडिंग का, इफ आई वांट टू समराइज, डेटा अंडरस्टैंडिंग में यू शुड अंडरस्टैंड कौन सा कॉलम का मीनिंग क्या है, देन नेक्स्ट स्टेप बिकम्स व्हाई दिस कॉलम इज हियर, इसका कहाँ पे यूज होगा, ये कौन सा हेड है, क्या है, राइट। क्लियर सबको, ऑनलाइन Yes, क्लियर, sir. ऑब्जेक्टिव क्लियर। सो इफ आई वांट टू समराइज, हमने स्टार्ट किया विद डेटा अंडरस्टैंडिंग, then we understood a little bit about formulas, then we understood what is your actual job,
and then we concluded it with the why you are doing what you are doing, right? So यही अप्रोच रखना है. You need to, हम अलग अलग डेटा सेट्स देखेंगे, पैटर्न सेम रहेगा, डेटा सेट लेंगे, उस पर कुछ कंसेप्चुअल सीखेंगे, उसमें से इंसाइट निकालेंगे, एंड देन यू विल गिव मी द एक्शंस, राइट? क्लियर? यस, दिस इज द फॉर्मेट फॉर ऑल द सेशंस. अलग अलग डेटा सेट रहेगा, इंसाइट्स, वो इंसाइट्स निकालने के अलग अलग टेक्निक्स, नॉट नथिंग मेजर इसमें कुछ. क्लियर सबको? सो गुड. Hopefully you learned something new. Just to feedback, you can give a thumbs up if you have learned something new. Those are experienced, not experienced. Okay, good. So network issue, I don't think so there is a network issue from our side. Maybe you people can check, right? I will ensure, maybe we'll see whether Wi-Fi का कुछ issue है क्या, but not. ठीक है. क्लियर सबको? पता चला? हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन ओके? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सर इंग्लिश आ रहा है कम्युनिकेशन सर. ग्रुप में कुछ डालिए. Good, good. Good. So if you have any doubt, okay. If you have any doubts, you can reach out to me on WhatsApp. आप WhatsApp पे मैसेज भेजिए, we'll be connect. Okay. And from tomorrow we'll have a lecture at 6:15. 6:15 को lecture होगा कल से. Okay. So thank you. Thanks a lot online. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Chalo. Share your contact detail. Madam, I'm in WhatsApp group. You can get a WhatsApp. You will get a contact detail. I'm in a group. Okay. WhatsApp group में आप देखिए contact list में I am there, so you will get all the details, right? Okay. So thank you. Chalo.